Uh, Good evening, one and all present here. I am Shobit Ranjan from Electrical Engineering Branch of Batch 2K23. A very warm welcome to this exciting webinar organized by Electrical Engineering Society, BIT Sindri. Today, we are privileged to host a session on grid integration on renewable energy systems, a topic that is not just relevant but vital for shaping the future of sustainable energy. Let me confirm whether I am audible or not. I'm audible or not? Yes, Shobit, you are audible. Okay, fine. Thank you, ma'am. Today we are privileged to host a session on grid integration of renewable energy systems, a topic that is not just relevant but vital for shaping the futures of sustainable energy. It is my absolute pleasure to introduce our distinguished speaker of the day, Mr. Barun Kumar Sir, the Director of Overspeed India. With years of rich experience in the renewable energy sector, Mr. Barun Kumar Sir has been at the forefront of implementing innovating solutions for integrating renewable sources into the power grid. His expertise span from technical design and grid stability to large-scale renewable energy project execution. He has worked closely with both government bodies and private industries, helping pave the way for greener and more efficient energy. So, sir, we are honored to have you to share your knowledge, experience, and vision with us. Sir, I would like to request you to address us on the given topics. Thank you. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. So, first of all, good evening, everyone. I think better we all switch on our cameras. Otherwise, it will be not be having like interactive discussions. I will be looking to your DP which you have in your Google Mail. So, it is better if you can switch on your cameras and then we can have the discussion. I would like to request everyone to switch on your cameras. Everyone, please turn on your cameras. That would be very easy to communicate.
I think only these many people who have switched on the camera are interested. Others are forced by seniors to join. Yeah? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं. So I am from batch of 2K10 to 2K14, BIT Sindri, and after that I did my MBA in energy management from Calcutta University from 2K16 to 18. Then I worked at Ministry of New and Renewable Energy for 3 years, and then I moved to this German company, which is Overspeed GmbH, and now we are have branch in India also. So we are working on the grid integration of renewable energy. Now, when we talk about renewable energy, and maybe if you have gone through the topics which we will discuss, do you want me to touch upon anything which you like, or if you have some doubts, like, or anything which you want, can ask me on renewable energy systems which you have in your mind, and then we can start the next round of discussion. So first, anyone from you, I think, I don't know how it will work. Like, anyone can raise hands, or then we can have one to one, maybe some discussions on what you think about renewable energy systems and what doubts you have. So maybe if someone can raise your hand, you have this option in the Google Meet. You can raise your hand from there. So Jisnu Sanyal, maybe you can directly ask by unmuting yourself. So I got Good one evening, message sir. from this. Yeah. Good evening, sir. I am Vishnu Sanyal from Electrical Engineering branch of batch 2K24. Sir, Hmm. my doubt is that, what is the scope of research in electrical engineering after BTech, especially in this field, and the impact of artificial intelligence, as this is one of the most budding technology and helping in each and every segment of society and workplaces. Okay. So you want to ask about the scope of research in renewable energy systems, Yes, sir. and mainly focusing on AI, you are asking. Yes, sir. Like both are different. Like I am asking in a different sense. Like what is the impact of AI in this field, and what is the scope of research after we finish with our BTech degree? Okay. Anyone else have any doubt? I noted this one. अरे पूछ लो. ऐसे किसको किसको लगता है कि AI can help in renewable energy systems? किसी को नहीं लगता. सिर्फ जिष्णु को लगता है, सान्याल को लगता है कि AI can help. मनीष को लगता है. चलो कृष राज को भी लगता है. ठीक है, लोगों को धीरे धीरे लग रहा है कि इट कैन हेल्प.
अच्छा, मेरे डेली प्रोफाइल का 60% मेरा कोर वर्क है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और मेरे प्रोफाइल में 60% वर्क मेरे को कोडिंग करना रहता है और एआई में एल्गोरिदम्स लिखना रहता है। अच्छा चलो, अभी क्या है ना कि मुझे पता नहीं कि अभी क्या सिनेरियो है बीआईटी सिंदरी में राइट नाउ, बट जब हम लोग थे 2K14 में वहाँ पे, देन इट वाज लाइक कि हम सोचते थे कि कोडिंग जो है वो नॉन नॉन कोर जॉब है, हमें कोर में जॉब चाहिए। और कोर में जॉब मतलब कि आइदर हमें टाटा, या अभी पता नहीं कौन कौन कंपनी आती है, टाटा वायर, टाटा स्टील जो आती थी, वो सब कोई ले जाए हमें, हमें कोर में जॉब चाहिए, ऐसा था हमारा परसेप्शन। देन धीरे धीरे इंडस्ट्री में आने के बाद पता चला कि कोर उतना भी अच्छा नहीं होता है, मतलब यदि आप प्योर कोर में रहेंगे तो ग्रोथ इज स्लो। आपको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में काम करना होगा। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ और हो जो मिक्स हो, जैसे मे भी हो सकता है वो एआई हो, मे भी हो सकता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कुछ हो, या फिर हो सकता है कि सम मैनेजमेंट वाला पार्ट हो। तो अभी क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज नॉट ओनली अबाउट कि इंडक्शन मोटर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है। अभी इट इज, जैसे हम कोर पेपर्स क्या है, हमारा पावर सिस्टम है, मशीन्स है, कंट्रोल सिस्टम्स है। अब जब तक हम बीटेक में रहते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता ये कंट्रोल सिस्टम्स कहाँ यूज होने वाला है, ये लैपलेस जेट फोरियर कहीं लगेगा भी कि नहीं लगेगा। बट प्रैक्टिकली ये लगता है, यदि आप कोर में काम करोगे तो ये सारा पेपर्स काम आता है आगे। आ, अभी मैं इसमें आता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स को यदि हम बात करते हैं तो मैं एक पहले ओवरव्यू बताता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स का। नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अभी जैसे बहुत सारा टारगेट्स है गवर्नमेंट का, और बहुत सपोर्ट भी है गवर्नमेंट का, तो उस केस में क्या, सोलर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, ये ज़्यादा है। बाकी बायोगैस कम है, हाइड्रो भी है। अभी क्या होता है कि सोलर पावर प्लांट जो है वो 24 आवर ऑपरेट नहीं करता। सोलर पावर प्लांट सिर्फ डे टाइम में ऑपरेट करता है, क्योंकि उसमें सोलर पावर को जनरेट करने के लिए सोलर एनर्जी चाहिए, तो सन से आएगा, तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो काम करेगा। उसी तरह विंड पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट में जब विंड स्पीड अच्छी होगी तभी पावर जनरेट होगा। अब विंड स्पीड जो है वो 12 महीना में 5 या 6 महीना ही है जब विंड स्पीड अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे ना तो सोलर और विंड पावर प्लांट्स आर गुड, बट उसमें एक इंटरमिटेंसी है, मतलब दैट दे आर वेरिएबल काइंड ऑफ इन नेचर। जबकि जब हम थर्मल पावर प्लांट से उसको कंपेयर करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट में तो क्या है कि हम जितना कोयला डालेंगे उसके हिसाब से, जितना उसका पीएलएफ है उसके हिसाब से वो वर्क करेगा। तो सब कुछ वहाँ कांस्टेंट है, थर्मल पावर प्लांट में इट इज कांस्टेंट, और आप उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं कोल का क्वांटिटी बढ़ा घटा के। लेकिन विंड और सोलर पावर प्लांट में ऐसा नहीं होता। विंड और सोलर पावर प्लांट में इट ऑल डिपेंड्स कि विंड स्पीड क्या है और सोलर रेडिएशन कितना फॉल हो रहा है उस सरफेस को उस टाइम पे। सोलर रेडिएशन प्रोफाइल अगेन क्या होता है, सुबह में सोलर से जो रेज आता है उसका इंटेंसिटी हल्का होता है, दोपहर में सही होता है, फिर उसके बाद फिर शाम में फिर हल्का हो जाता है। तो हमारा सोलर पावर से जनरेशन भी है, यदि मान लो 100 मेगावाट का पावर प्लांट है तो मॉर्निंग में 8 8 AM के आसपास वो 30 40 मेगावाट जनरेट करेगा, 12 बजे के आसपास 90 to 100 मेगावाट जनरेट करेगा, शाम में आते आते फिर से वो कम पावर जनरेट करेगा। और उसमें यदि क्लाउड मूवमेंट हो गया, तो क्लाउड यदि मूव किया सोलर पावर प्लांट के ऊपर से, तो क्या होगा, तो उसका रेडिएशन जो फॉल कर रहा है सोलर पैनल पे वो कम हो जाएगा। तो अगेन उसको तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब सोलर रेडिएशन कम हो जाएगा।
विंड स्पीड का भी वैसा ही है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा एटमॉस्फेयर में या कुछ होगा तो विंड स्पीड कम या ज्यादा हो जाएगा। तो चैलेंज कब आता है, जब हम एक ग्रिड, जो कि हमारा पावर ग्रिड जिसको बोलते हैं, एक जो टोटल ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम में यदि हम देखें तो क्या है, बेसिकली दो चीज है, या तो जनरेशन है या तो लोड है, या और भी कुछ है। या तो जनरेशन है या तो लोड है। अभी जो ग्रिड होता है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। यदि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी भी गिवन इंस्टेंट पे, वो इंस्टेंट बहुत छोटा होता है, 15 मिनट लेवल पे हम लोग कंसिडर करते हैं डेली। तो एट ए गिवन इंस्टेंट तुम्हारा लोड और जनरेशन जो है वो सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो उसके लिए तो बहुत प्लानिंग लगेगा। तो उसके लिए इंडिया में होता है लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, लोड डिस्पैच सेंटर का काम ही ये होता है कि किसी भी इंस्टेंट में जितना मेरा डिमांड आ रहा है, जितना लोड है, चाहे वो डोमेस्टिक लोड हो चाहे इंडस्ट्रियल लोड हो, उसको मुझे मैच कराना है जनरेशन से। अब जनरेशन से हम कैसे मैच करा रहे हैं, सोलर और विंड पावर प्लांट जो है वो मस्ट रन होता है। मस्ट रन मतलब कि उनको एज पर पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट पॉलिसी, सोलर और विंड पावर प्लांट का पावर को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते कंट्रोलर कंट्रोलर से। वो जो भी जनरेट करेगा उसको ग्रिड में फीड होना है। तो हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम थर्मल को कंट्रोल कर सकते हैं, हाइड्रो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है कि हर 15 मिनट में, किसी भी दिन में, यदि तुम पूरा दिन, यदि 24 घंटे का है, तो उसको तुम 15-15 मिनट में डिवाइड करोगे तो टोटल 96 ब्लॉक बन जाएंगे। 1 घंटा में 4 ब्लॉक, 15-15 मिनट का, तो 24 × 4, 96 ब्लॉक। तो हर 96 ब्लॉक पे डेली लेवल पे मैचिंग होता है, और उसका सेम डे पे फिर उसका रिवीजन भी होता है। तो ये सब कुछ तो तुम कोर इंजीनियरिंग सीख के तो कैसे करोगे, तुमको तो कोडिंग से ही करना होगा, एल्गोरिदम से ही करना होगा। तो पहला तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभी किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में यू नीड टू नो कोडिंग। ठीक है, चाहे पाइथन हो चाहे आर हो, कोई भी एक लैंग्वेज आना चाहिए। दूसरा है कि अब जो मैं बात कर रहा था कि हमें जनरेशन और डिमांड को मैच कराना है। यदि हमें जनरेशन और डिमांड को मैच कराना है तो हमें उस हिसाब से प्लानिंग करना होगा कि हर 15 मिनट पे कैसे वो मैच करेगा। अभी मान लो कि मैंने मैचिंग करा लिया, अचानक से क्लाउड मूव कर गया, या तुम बोले कि अच्छा ये सोलर पावर प्लांट है, ये तो क्लियर क्लियर डे में इतना जनरेट करता है, मैंने एक प्लानिंग करके आगे कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि नेक्स्ट डे क्लाउड फॉर्म हो गया। क्लाउड भी बहुत टाइप का होता है। जब फर्दर तुम यदि ग्रिड स्टडीज में काम करोगे तो तुम्हें इसका भी आइडिया रहेगा कि क्लाउड कितने तरह का होता है। ठीक है, तो अचानक से क्लाउड फॉर्म हो गया। अभी सोलर प्लांट के ऊपर मान लो क्लाउड फॉर्म हो गया तो रेडिएशन कम हो गया, जनरेशन कम हो गया। जनरेशन कम हो गया तो तुम तो पिछले दिन मिला लिए थे कि लेट से 12 बजे से लेकर 12:15 के बीच में मेरा डिमांड और सप्लाई हम मैच करा लिए जनरेशन। लेकिन उस टाइम क्लाउड आ गया तो मेरा जनरेशन क्या हो गया, कम हो गया। जनरेशन कम हो गया तो कहीं ना कहीं से तो मुझे पावर ला के देना होगा वहां पे। तो इसके लिए फिर फर्दर कॉन्सेप्ट है पावर मार्केट भी है। कितने लोगों को पता है कि पावर मार्केट है इंडिया में? कितने लोगों को पता है कि पावर मार्केट है इंडिया में? जो ज्यादा आंसर करेगा उसको मैं इंटर्नशिप दूंगा। अच्छा चलो, नहीं कोई बात। इंडिया में पावर मार्केट भी है। पावर मार्केट में डेली 15 मिनट लेवल पे पावर का ट्रेडिंग होता है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट होता है ना, उस तरह से पावर मार्केट भी होता है। पावर मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो भी एल्गोरिदम्स में काम करते हैं, पाइथन में या आर में, कि किस तरह से मैचिंग कराना है मुझे पावर का, ताकि मुझे मिनिमम कॉस्ट में पावर मिले। ठीक है, कहीं कहीं कुछ कुछ पूछते रहना, नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोग। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे पावर मार्केट से
तो कहाँ थे? हाँ ठीक है, यदि मान लो कि मुझे आज पता चला कि 3 घंटा के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होना है, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो पावर लेना होगा। तो मैं क्या करूंगा, पावर मार्केट में जाऊंगा, देखूंगा कि अच्छा, लेट से मैं एक स्टेट हूँ, मैं झारखंड हूँ, मैंने देखा कि 15 मतलब 3 घंटा के बाद क्लाउड फॉर्म होने वाला है, लेकिन मैंने तो कल देखा था कि जनरेशन अच्छा से होगा करके। तो मुझे पावर का गैप मिलने वाला है, मतलब या तो मुझे लोड सेटिंग करना होगा, या मुझे पावर मार्केट से पावर खरीदना होगा। तो उसके लिए मुझे प्लानिंग करना होगा कि मुझे 3 घंटा बाद कितना पावर खरीदना है पावर मार्केट से। तो ये सब भी सब्जेक्ट्स है। सिर्फ जो हम पेपर जो देखते हैं गेट में आता है, या जो तुम्हारा कोर बुक में है, दे आर ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। तो अभी जैसे रिसेंट जो एडवांसेस है, जिसमें तुमको यदि जॉब चाहिए, तो तुम्हें इन चीजों के ऊपर जो रिसर्च है उस पर फोकस करना होगा। जैसे जिष्णु ने मुझसे पूछा था ना कि एआई से हम क्या रिसर्च कर सकते हैं। हम एआई से उस तरह के एल्गोरिदम्स डेवलप कर सकते हैं जो पावर मार्केट में कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करे, जब हम पावर परचेस कर रहे हैं उसका। और क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो प्लानिंग सिस्टम है, जब हम जनरेशन और कंजम्पशन को मैच कराते हैं, वहां पे भी हम एआई का हेल्प से कर सकते हैं। एआई कुछ नहीं होता, एआई वर्ड जो बोल रहे हो वो कुछ नहीं है। एआई को तुम फर्दर सोचो कि एआई में क्या है, सुपरवाइज लर्निंग का बात कर रहे हो, मशीन लर्निंग का बात कर रहे हो, या अनसुपरवाइज लर्निंग का बात कर रहे हो, न्यूरल नेटवर्क्स का बात कर रहे हो। तो यदि तुम्हें रिसर्च करना है तो तुम्हें देखना होगा, लेट से कि मेरे को फोरकास्ट करना है, मेरे को फोरकास्ट करना है कि पावर प्राइसेस मार्केट में क्या रहेगा। तो पावर प्राइस फोरकास्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सा एआई का टूल यूज कर सकते हैं? हम लेट से न्यूरल नेटवर्क यूज कर सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क को हम हिस्टोरिक डेटा देंगे कि डिफरेंट वेदर कंडीशंस में, डिफरेंट टाइम ऑफ द डे में, जो पास्ट डेज है, हिस्ट्री है, उसके हिसाब से पावर प्राइसेस क्या रहता है। उसके हिसाब से हम नेक्स्ट डे में क्या प्राइसेस हो सकता है उसका फोरकास्ट कर सकते हैं। ये तुम्हारा एक अच्छा बीटेक का प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक्स में काम कर सकते हो। या फिर जैसे मान लो कि सोलर सोलर है, सोलर का जो पावर फोरकास्ट करते हैं, सोलर का पावर कितना पावर जनरेट होगा, कैसे होगा, तो वहां पे तुम्हारा ये न्यूरल नेटवर्क डायरेक्ट काम नहीं आएगा। वहां पे क्योंकि एक और चीज आ जाएगा पिक्चर में, जो है वेदर डेटा। ठीक है। तो एआई का यूज हम करते हैं, लेकिन एआई का यूज हम उतना ही करते हैं जितना जरूरत है, जितना ट्रेनिंग के लिए जरूरत है, जितना सिस्टम को ट्यून करने के लिए जरूरत है। हम एआई को एज ए ब्लैक बॉक्स यूज नहीं करेंगे। हम एआई को हमेशा यूज करेंगे ताकि ये ऐसा समझ सके कि यदि कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है मेरे मॉडल में, तो हम समझ सके कि वो क्यों हो रहा है। तो एआई को यूज करना इज गुड, बट एआई को इस तरह से यूज करना है कि हम उसको सुपरवाइज कर सके, या फिर हम हम रिसर्च पेपर सर्च कर सकते हैं कि कौन सा एआई टूल्स कहाँ पे यूज होता है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेरी? जब कोई फिर से वो वीडियो ऑफ करके सोने चला गया, नहीं? पुष्पम, क्या क्वेश्चन पूछ रही हो? नॉट रिलेटेड टू दिस सर, पूछो। Sir, actually, I have a very different question, but it's related to renewable energy. Like recently, I have started searching about new technology in all over world. So I come through few of the technologies like China is making straight light with wind turbine on the above vertical wind turbine so that it can generate electricity and power the street light. In Japan they are going to yeah, they are working on titanium solar panel. I just read about this. And also one of the report which really
which was really interesting, is the space solar power generation. I have heard about this, the space solar power generation, that they will plant their panels on the space, in geo in the orbit outside the space, and from there they will generate electricity by using microwaves. All these things are like so vast technology, but when I see in India, we are still fighting for the rooftop solar panels. So these things, I think, what are the necessary steps as we are the engineers should take so that we can also reach at that level? अच्छा, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। यदि मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मैं स्पेस में सोलर प्लांट लगा रहा हूँ और मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है, तो तुम्हें जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा वो 20 रुपीज पर यूनिट आएगा। एक एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी विल कॉस्ट 20 रुपीज। और दूसरा एक तुम्हारे पास अल्टरनेटिव है कि तुम अपने छत पे सोलर रूफटॉप लगा लो, जिसका सोलर का इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे पास 3 रुपए या 4 रुपए यूनिट आएगा। तो विच यू विल बाय? I will definitely go for the option two. But what I read that they are claiming that after 100 years, if they maintain all those things, the price should be same. This is just in a research field. अंडरस्टूड। Yeah. So एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अभी हम जैसे जानते हैं विंड पावर प्लांट, ठीक है। विंड पावर प्लांट इज नॉट ओनली जो मतलब विंड टरबाइन जो लगा हुआ है फील्ड में, दैट इज नॉट ओनली द विंड पावर प्लांट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि विंड पावर प्लांट में क्या है कि जब सोलर या विंड भी आया था ना, तो दे वर लाइक वेरी कॉस्टली। जब 1995 या 1995 छोड़ो, 2005 में जब पहला टेंडर आया था सोलर पावर प्लांट का, तो उस टाइम दे गॉट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 16 रुपीज पर यूनिट फ्रॉम दैट सोलर पावर प्लांट, क्योंकि दैट टाइम टेक्नोलॉजी वाज कॉस्टली, ठीक है। अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करता है, वहां पे रोल प्ले करता है गवर्नमेंट। व्हाट दे डू, यदि यदि गवर्नमेंट को या प्लानिंग जो कर रहे हैं उनको यदि लगता है कि उस टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल है, तो व्हाट दे डू इज लाइक दे गिव ए फंडिंग कॉल्ड वाइबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। मतलब मान लो कि तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपए में मिल रहा है और वो इलेक्ट्रिसिटी यदि 16 रुपए का पड़ रहा है, तो 11 रुपए का जो डिफरेंस है दैट गवर्नमेंट विल पे, ठीक है। ताकि कॉस्ट ऑफ सिस्टम 5 रुपए ही पड़े, लेकिन वो सिस्टम जब तक डेवलप नहीं होता है तब तक ही वो सपोर्ट रहता है, ठीक है। विंड पावर प्लांट में भी वही है। विंड पावर प्लांट अभी जैसे 3 रुपीज 70 पैसा समथिंग पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें प्लानिंग कर रहे हैं कि हम विंड पावर प्लांट को सी बेड पे लगाएंगे। सी बेड पे मतलब कि मान के चलो कि 10 किलोमीटर सी के अंदर, 5 5 से 10 किलोमीटर सी के अंदर लगाएंगे। क्या फायदा होगा कि वहां पे विंड स्पीड का फ्लो वगैरह जो है वो अच्छा रहेगा, पावर ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑफशोर विंड पावर प्लांट, क्योंकि वो शोर के अंदर है, उसको ऑफशोर विंड पावर प्लांट बोलते हैं। बट अगेन कॉस्ट इज कमिंग 8 रुपीज समथिंग, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपोर्ट दैट, ठीक है। अभी गवर्नमेंट के पास मान लो प्रायोरिटी है सपोर्ट करने के लिए 8 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी, 10 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, 20 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, 100 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी। तो दे विल फर्स्ट सपोर्ट वो जो कि क्लोज टू द एक्चुअल्स है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल दे आर सपोर्टिंग ऑफशोर क्योंकि दे आर क्लोज, 8 रुपीज के आसपास आ रहा है। थोड़ा सपोर्ट देंगे, टेक्नोलॉजी फर्दर डेवलप होगा। होता क्या है कि जैसे मास स्केल में जब प्रोडक्शन शुरू होने लगता है तो कॉस्ट कम्स डाउन, ठीक है। तो वहां पे वो चीज है। अभी जैसे तुमने जो बोला दैट इज रिसर्च पर्सपेक्टिव, लेकिन एज इंजीनियर्स हमें पहला फोकस करना चाहिए कि हम किसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। स्केलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उस केस में भी हम देखें तो जैसे तुम सोलर पैनल बोल रहे हो, सोलर पैनल एक्चुअली में देखोगे तो स्पेस में जो सोलर पैनल्स यूज होता है उनका एफिशिएंसी 50%, 50, ठीक है।
लेकिन जो हमारे घर वगैरह में लगता है उनका एफिशिएंसी इज 22%, 23%। क्यों? क्योंकि वो 50% वाला इज नॉट वाइबल, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट वाइबल एट होम। ठीक है, जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगा तो मे बी 50% वाला भी घर पे लगे, क्योंकि 3 साल पहले तक घर के ऊपर 18% वाला लगता था। बट अभी टेक्नोलॉजी डेवलप करके वी रीच की 22 से 23% वाला घर पे लग रहा है। तो it is good that we should see that what are the developments, but as engineers और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम क्या करके स्केल कर सकते हैं चीजों को। ठीक है। एनी अदर क्वेरीज? इसी में बहुत कुछ है। सोलर विंड पावर प्लांट में क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ अभी। ठीक है। अम्म, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि चीजें कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। वो सिर्फ पावर सिस्टम्स का बुक और कंट्रोल सिस्टम्स का बुक तो बोरिंग है, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग भी होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो डे टू डे वर्क है उसमें मेरा काम है कि सोलर और विंड पावर प्लांट से कितना पावर जनरेट होगा नेक्स्ट डे, या फिर सेम डे में क्या पावर जनरेट होगा वो मुझे प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक है। अभी प्रिडिक्ट यहाँ तो एस्ट्रोलॉजी तो काम करेगा नहीं, तो हाउ वी कैन डू दैट कि वी यूज एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स कैसे बनाते हैं? तो एल्गोरिदम्स में वी यूज वेदर डेटा। वेदर डेटा एजेंसीज हैं इवन, मतलब तुम्हें पता नहीं होगा कि इंडिया में वी हैव वेदर एजेंसीज जिनके पास सुपर कंप्यूटर्स है। और वो लगभग ऐसा होगा जैसे मान लो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे बैठते हैं ना, 100 150 जो बच्चे बैठते हैं, उतना बड़ा क्लासरूम का 2 क्लासरूम जितना बड़ा वो सुपर कंप्यूटर्स का एरिया है। ठीक है। वहां पे दिन में हर 6 घंटे पे मॉडल्स रन करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल्स। व्हाट दे डू इज लाइक ऑल ओवर इंडिया में जितने जगह उनका मेजरमेंट स्टेशंस है वहां से वो डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके हिसाब से वो ये प्रेडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एटमॉस्फेरिक इक्वेशंस कि कल का वेदर कैसा होगा, और कल क्या विंड स्पीड होगी, कल क्या रेडिएशन होगा, कल कहाँ क्लाउड फॉर्म होगा। ये सब कुछ इंडिया करता है, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड के टॉप 5 इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है। ठीक है। इवन इंडिया शायद दूसरा कंट्री है जो अपना खुद का भी मॉडल रन करता है इन सब चीजों में। तो वहां पे रिसर्च हो रहा है। इंडिया में एजेंसीज है जैसे NCMRWF करके एक एजेंसी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ये लोग बहुत अच्छे रिसर्च करता है। ठीक है। अभी क्या है कि मेरा काम है कि उनसे मैं वेदर डेटा लेता हूँ। उसके बाद वेदर डेटा के हिसाब से मैं मॉडल्स को ट्यून करता हूँ। मॉडल्स को ट्यून करने का मतलब है कि जो सोलर पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट है उसका ही सेम टू सेम मान के चलो कि एक डिजिटल ट्विन मॉडल हम एल्गोरिदम से बनाते हैं। और हम ये मिमिक करने का कोशिश करते हैं कि यदि वो सोलर पावर प्लांट पे इतना रेडिएशन फॉल करे, या ये वो विंड पावर प्लांट पे इतना विंड स्पीड फॉल करे, तो पावर कितना जनरेट होगा। और वो पावर ऐसा नहीं है कि कल कितना जनरेट होगा, दैट इज लाइक 96 वैल्यूज। हर 15-15 मिनट में कितना पावर जनरेट होगा, और वो हम लोड डिस्पैच सेंटर्स को सेंड करते हैं ताकि वो ग्रिड को मैनेज कर सकें। इसमें AI का यूज है, सब चीजों का यूज है। इवन ये इतना एडवांस्ड है कि तुम ऐसा सोचो कि वी वैन यूज इसरो का जो सैटेलाइट इमेजेस है ना, मान लो हमारे पास जो इसरो है उनका सैटेलाइट, एक मिनट को मैं दिखाता हूँ एक। मेरा स्क्रीन विजिबल है?
Yes, sir. ये अभी तुम मत देखो, मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ क्या है। ये इसरो का एक सैटेलाइट है, इनसेट 3D। ठीक है, ये हमें इस तरह का इमेज देता है। हर 30 मिनट्स पे हमारे पास एक इमेज आता है। ठीक है, अभी एज ए रिसर्चर या एज ए तुम्हें कुछ नया करना है, तो तुम्हें ये इमेज दे दिया गया। अब तुम्हारा काम है कि तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो फॉर योर जो भी एप्लीकेशन है उसके लिए। तो वी यूज दिस इमेज टू फाइंड आउट कि हमारे सोलर पावर प्लांट पे कितना क्लाउड आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल देखो जूम्ड है जैसे, तो यहाँ पे देखो इंडिया है सेंटर में। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जो इंडिया वाला पोर्शन है ये डिफरेंट इमेजेस है, हर 30-30 मिनट्स का इमेजेस है। रुको मैं आगे जा रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, हम इंडिया को कट कर लिया। ठीक है, क्योंकि पूरा इमेज जो है वो एक इमेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 500 GB होता है। 500 GB डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। तो 500 GB का एक इमेज लेके उससे हम इंडिया का एक इमेज काटते हैं। फिर इंडिया का एक इमेज काटने के बाद हम लेट से गुजरात में हमारा सोलर पावर प्लांट है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको फर्दर कट करते हैं कि हमारा सोलर पावर प्लांट का बाउंड्रीज पे ही सिर्फ कट करते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा बाउंड्रीज है। अभी क्या होता है ना कि क्लाउड जो होता है वो रिफ्लेक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए वो वाइट वाइट दिख रहा है। ये जो है ये क्लाउड है। ठीक है, तो क्लाउड जो है वो रिफ्लेक्टिव नेचर का होता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है चीजों को। तो हमें पता चल जाता है, अच्छा जहां पे भी ये रिफ्लेक्टिव है, मतलब जहां पे इंटेंसिटी हाई है इमेज में जिस पिक्सल पे, जैसे तुम लोग मेगापिक्सल फोन यूज करते हो ना, उसी तरह से ये डिफरेंट जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना एक इमेज में, उसको पिक्सल्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो सोलर पावर प्लांट है वो इन पिक्सल्स के बीच में है। तो हम इन पिक्सल्स के पास देखेंगे कि जो क्लाउड इंटेंसिटी है, जो पिक्सल वैल्यू वो कितना है। यदि ये पिक्सल वैल्यूज आर हाइयर साइड तो ये ब्राइटर इमेज आएगा, मतलब वहां पे क्लाउड है। तो हम इस तरह से एल्गोरिदम्स लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि कब किस एरिया में क्लाउड्स है। फिर हम क्या करते हैं, हम दो कंजिक्यूटिव इमेज लेते हैं, 30-30 मिनट बाद दो कंजिक्यूटिव इमेजेस। और फिर हम क्या करते हैं कि एल्गोरिदम्स लिखते हैं कि वो ये डिटेक्ट करे कि क्लाउड मूव कैसे हो रहा है, क्लाउड किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो दिखा, देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है एरो एरो करके, ये वो क्लाउड मूवमेंट का डायरेक्शन है जो हम लोग ट्रैक करते हैं। फिर क्लाउड मूवमेंट का डायरेक्शन ट्रैक करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कब हमारे सोलर पावर प्लांट के ऊपर क्लाउड आएगा और किस इंटेंसिटी का क्लाउड आएगा। तो हमारा सोलर पावर प्लांट का जनरेशन किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भी काम करते हैं। तो ये भी कोर इंजीनियरिंग में ही आता है, कोर इंजीनियरिंग में ही ये सब भी आता है। अभी पूरा समझने का जरूरत नहीं है उसको, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, वो मैं बस समझाने के लिए बता रहा था कि किस तरह से चीजों को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब सिर्फ कोर फील्ड नहीं रह गया है, इट बिकेम इंटरडिसिप्लिनरी, जहाँ पे वेदर डेटा भी यूज होता है। इवन लोड फोरकास्टिंग भी जब करते हैं उसमें भी वेदर डेटा यूज होता है। फोरकास्टिंग यदि करना है तो उसमें एल्गोरिदम्स यूज होता है। यदि अ, मेरा डिमांड और सप्लाई मैच नहीं कर रहा है तो हमें पावर मार्केट में भी ट्रेड करना होता है। पावर मार्केट तो खुद में एक बड़ा बड़ा ही टॉपिक है, उसमें तो मास्टर्स ही हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स है, जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मुझे किस में काम करना है। और गेट का तैयारी भी करना है, गेट का तैयारी तो करना ही है उसके।
तो कोशिश ऐसा करना चाहिए कि थर्ड ईयर में ही रिसर्च कर लेना चाहिए, फाइनल ईयर तो गेट का तैयारी में निकल जाता है। और किसी का कोई डाउट? ज्यादा डिटेल में तो मैं डिस्कस कर नहीं सकता, उतना टाइम हमारे पास अभी है नहीं, Yes, sir. और एक सेशन पे भी Good है नहीं evening, sir. बेसिकली। हाँ, गुड इवनिंग। Sir, I want to ask like how students like us, like young engineers, can prepare themselves to contribute in this field. तुम लोग वर्कशॉप वगैरह अटेंड किया करो, कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड किया करो, और मैक्सिमम वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट फ्री होता है। हम लोग जाते हैं तो हमें 70,000 रुपये 80,000 रुपये ले लेते हैं वो, लेकिन तुम लोगों के लिए फ्री होता है। Yes, sir. And sir, तो one more question was that ki, like from your experience, like what is the biggest technical challenge in integrating renewable energy? Like with existing grid, we are generally using energy made from non-renewable resources. So what is the biggest technical challenge for integrating it for existing grids? देखो, टेक्निकल चैलेंजेस बहुत लेवल पे है। यदि मैं एक बात किया, जैसे ये एक चैलेंज है कि यू कांट प्रिडिक्ट देम फुल्ली, ठीक है, विंड और सोलर। दूसरा चैलेंज है कि ग्रिड कोड, ठीक है, हर एक कंट्री का एक ग्रिड कोड होता है। कि जब हम फॉर एग्जांपल, बहुत सारे टर्म्स अभी तुम लोग के लिए नया है, जैसे मान लो कि यदि कोई पावर प्लांट है 100 मेगावाट का, ठीक है, तो उसको फ्रीक्वेंसी पे रन करना है, कितना फ्रीक्वेंसी रेंज में उसको ऑपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद है कि उनको अपना शेड्यूल आगे भेजना है डिस्पैच सेंटर के पास, ठीक है। तो हर चीज को मेंटेन करने के लिए ग्रिड कोड होता है। जिस तरह से एक मान के चलो कि जैसे एक मैनुअल होता है ना, उसी तरह से एक ग्रिड कोड होता है। तो ग्रिड कोड भी जो है वो एवॉल्व होता है, जैसे जैसे चीजें डेवलप होती हैं, जैसे जैसे इंटीग्रेशन होता है चीजों का, वो भी डेवलप होता है। दूसरा चैलेंज जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जब इन सब चीजों ये सब चीज एक साथ सिस्टम में इंटीग्रेट होता है तो उनको कंट्रोल करना। इंडिया में आई थिंक 15 स्टेट्स के पास खुद का रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है, जहाँ से वो चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब भी है। फिर उसके बाद हम लॉन्ग होराइजन में भी प्लानिंग करना पड़ता है कि कैसे चीजों को वर्कआउट कराना है। अगेन, जो डिफरेंट टारगेट्स है, सोलर विंड एनर्जी टारगेट्स है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन कहाँ पे बिछाना है। जो तुम्हारा लेट से रूफटॉप सोलर, हम रूफटॉप सोलर अभी बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर्स है, मे बी दे आर नॉट कैपेबल टू सस्टेन ऑल, तो उसका भी रिवैम्पिंग होता है, मतलब रीडिजाइन करते हैं, रीटेंडर होता है, रीवर्क होता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब डेवलप होते ही रहती हैं चीजों समय के साथ साथ। अगेन, अभी तो 15 मिनट मार्केट है, द अभी टॉक्स चल रहा है कि इसको 5 मिनट का मार्केट बना दे। तो देर आर मैनी थिंग्स विच आर हैपनिंग देयर। कुछ कुछ चीजें जो तुम कर सकते हो ना एज ए स्टूडेंट लेवल पे, कि कुछ 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 चीजें हैं जो तुम चाहो तो नोट कर सकते हो, जिसके ऊपर तुम वर्क करो, पढ़ने का कोशिश करो, समझने का कोशिश करो। एक तो तुम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, जहाँ पे 90% ऑफ द पावर ट्रेडिंग होता है, ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। Yes, sir. उसका उसका वेबसाइट देख सकते हो, वहां पे भी कुछ मटेरियल्स है कि पावर मार्केट्स कैसे वर्क करता है। उनके पास भी कुछ कोर्सेस है, बेसिक कोर्सेस, 2-3 हजार 4 हजार का ऐसा कोर्सेस होगा सर। उसको अटेंड कर सकते हो, समझ सकते हो कि पावर मार्केट कैसे काम करता है। वो तुम्हें प्लेसमेंट्स वगैरह में भी हेल्प करेगा, ये सब तुम्हें आइडिया रहेगा तो। दूसरा चीज जो तुम्हें समझना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, हमारा एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट है RDSS करके, RDSS, ठीक है। RDSS प्रोजेक्ट क्या है? ऑटोमेटिक मीटर्स क्या है, ऑटोमेटिक जो मीटरिंग सिस्टम है, अभी सारा मीटर रिप्लेस हो रहा है, ये न्यू स्मार्ट मीटर्स है, वो क्या है,
ठीक है, स्मार्ट मीटर्स कैसे हेल्प करेगा ग्रिड इंटीग्रेशन में, या ग्रिड को कैसे सपोर्ट करेगा, ये सारा टॉपिक्स हुआ। इसके लिए तुम इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम करके एक है, वहाँ पे बहुत सारा कोर्सेस होता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा डिस्काउंट्स होता है। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम में बहुत सारा कोर्सेस है। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद यही है, यही सब आना चाहिए। और पाइथन और आर तो सबको आना चाहिए, ठीक है। जो Yes, लोग sir. सोचता है Thank you, कि sir. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसा ऐसा मत सोचना कभी। यदि तुम्हें 10 lakhs के अंदर का पैकेज चाहिए तो तुम्हें पाइथन आर का जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें 10 lakhs से ऊपर का पैकेज चाहिए तो तुम्हें कोडिंग आना चाहिए। और कोई डाउट्स? तुम लोगों को कोई डाउट ही नहीं रहता है। हम लोगों के पास सीनियर आता था तो हम लोग पकड़ के बैठा लेते थे उसको Good रूम में evening, ही। sir. हाँ बोलो। Sir, good evening. My name is Harinandan Kumar. Sir, my query is, according to your opinion, what is the role of smart grids evolving with the rise of renewable energy adoption? Like, sir, I know about the self-healing materials and many things regarding this. So, what's your opinion on this? स्मार्ट ग्रिड इज नथिंग बट जहाँ पे आप सब चीजों को एक साथ इंटीग्रेट कर पा रहे हो। देयर आर मैनी थिंग्स हैपनिंग ना, जैसे मान लो कि सोलर है, विंड है, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है। जैसे जो रूफटॉप में लगता है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, ठीक है। अभी क्या है, ईवी चार्जिंग है, वो भी आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी क्या है, ये सब कुछ ग्रिड में आके ज्वाइन हो रहा है। तो अभी ग्रिड शुड बी स्मार्ट इनफ कि वो ऑपरेट कर सके सब चीजों को, सब लोड्स को एक साथ लेके, सारे जनरेशन को एक साथ लेके। तो उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, एल्गोरिदम्स भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है। जब ये सब चीज कंबाइन हो जाता है ना, तब हम उसे स्मार्ट ग्रिड बोलते हैं। अभी जब तुम्हें स्मार्ट ग्रिड में यदि रिसर्च करना है या वर्क करना है तो तुम्हें कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। या तो तुम देखोगे कि उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल है और मैं उसमें वर्क करूं, या तुम देखोगे कि उसमें साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है, मैं उसमें वर्क करूं, ठीक है। या फिर ग्रिड इंटीग्रेशन का क्या रोल है, मैं उसमें वर्क करूं, ग्रिड कोड का क्या रोल है, मैं उसमें वर्क करूं, ठीक है। तो स्मार्ट ग्रिड इज ऑल अबाउट कि हमारा सिस्टम जो है बिना किसी ब्लैकआउट या ब्राउनआउट के चल रहा है, और जहाँ पे पावर का फ्लो इज नॉट फ्रॉम वन साइड। अभी क्या होता है, पावर फ्लो क्या होता है, ओनली फ्रॉम जनरेटिंग पावर प्लांट से हमारा जाता है लोड के तरफ। हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम दोनों तरफ से पावर का ट्रांसमिशन कर सके। मतलब लेट से तुम्हारे पास एक ईवी चार्जिंग स्टेशन है, वहां पे लेट से धनबाद में 10 इलेक्ट्रिक बसेस है, 10 इलेक्ट्रिक बसेस वहीं पे चार्ज होती हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि एट ए टाइम सारी बसेस चार्ज नहीं होती, या कुछ शेड्यूल है उसका। अभी क्या होता है कि व्हीकल टू ग्रिड का भी कॉन्सेप्ट है, V2G। तो तुम्हारा जो सिस्टम है वो इस तरह से होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ता है उस टाइम तुम अपना बैटरी चार्ज कर लिया व्हीकल का एज ए एग्रीगेटर, जब तुम्हारे पास 10 बसेस वगैरह हैं। और लेट से जब प्राइस हाई है, लेट से मार्केट में, उस टाइम तुम्हारे पास लेट से बस का भी यूटिलाइजेशन नहीं है, तो उस टाइम तुम पावर को दोबारा ग्रिड में बेच के तुम सेल भी कर लियो। तो स्मार्ट ग्रिड ऐसा है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और हर एक कंपोनेंट एक दूसरे से बात कर सकता है, टॉक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। दैट इज ए स्मार्ट ग्रिड। और किसी का कोई डाउट? गुड इवनिंग सर। बोलो। सर लाइक जैसे बहुत सारे जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत तरह के डोमेन्स में जाते हैं, लाइक बहुत तरह के स्किल सीखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट और बहुत ऐसा डोमेन रहता है।
तो जैसे वो लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं इन सब चीजों को लेके, वैसे हम एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या क्या चीजें सीख सकते हैं? वही तुम पावर मार्केट सीख सकते हो, तुम एल्गोरिदम सीख सकते हो। तुम्हें पता है डेटा साइंस का एक कोर्स होता है आईआईटी मद्रास का। आईआईटी मद्रास का एक डेटा साइंस डिप्लोमा कोर्स होता है जो तुम किसी भी दूसरे डिग्री को करते करते कर सकते हो ऑनलाइन। उसका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्लियर करके तुम डेटा साइंस का कोर्स वहां से कर सकते हो। वो हेल्पफुल है तुम लोगों के लिए, यदि तुम लोग उसको फॉर्म फिलअप करो और यदि क्रैक हो जाता है। वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आई थिंक पूरे डिप्लोमा कोर्स का ही उसका फीस 70,000 या समथिंग है पूरा कोर्स का। बट तुम्हारे पास क्या एज रहेगा कि तुम्हारा डिग्री कंप्लीट होते होते तुम्हारे पास बीआईटी सिंधरी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है और आईआईटी मद्रास से डेटा साइंस का डिग्री है। तो वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। दूसरा जो मैं बोला, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में तुम्हारा पावर ट्रेडिंग का कोर्सेस है। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम में तुम्हारा स्मार्ट ग्रिड और साइबर सिक्योरिटी इन सब चीजों का कोर्सेस है। अगेन वहां से ही साइबर सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि वहां साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्सेस है वो ग्रिड के लिए ही पढ़ाया हुआ है। दैट इज नॉट ऑन साइबर सिक्योरिटी ऑन कंप्यूटर साइंस साइड। तो डोमेन रिलेटेड कोर्सेस कर सकते हैं। सोलर या विंड एनर्जी में काम करना है तो सोलर एनर्जी का भी बहुत सारा कोर्सेस होता है। सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन का भी आई थिंक आजकल बहुत सारा वर्कशॉप होता है। सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन उतना कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन जब तुम ला बड़े प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हो तब वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वो सब का भी कोर्सेस होता है। तो ये सब आइडियाज होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जो जनरल डिग्री कोर्सेज जो तुम कर रहे हो। यस सर। और बहुत कुछ है, अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, जितना आया मैं बोल दिया। ये भी तुम लोगों का क्या क्या कोर्सेस है? सेकेंड ईयर में मैटलैब है या चेंज हुआ है कुछ? सेकेंड ईयर में मैटलैब था शायद। कोडिंग तो एक ही पढ़ाया जाता है, हाँ मैटलैब ही ना सर, खाली? यस ये सर फर्स्ट ईयर में तो मैटलैब और मशीन लर्निंग के कुछ कोर्सेज इंक्लूडेड है सर। मशीन लर्निंग का पेपर भी है हम लोग का, और पाइथन का भी कौन है सर। कौन से ईयर में है ये? सर सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम में पाइथन है और सेकेंड सेम में एमएल है सर। अच्छा, सेकेंड सेम में एमएल है? सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम में? अच्छा, सर सेकेंड ईयर मतलब मीन्स फोर्थ सेम में है सर। फोर्थ सेम में। तो वो मतलब कैसे है, एक सब्जेक्ट है या कोई सब्जेक्ट का पार्ट है? नहीं सर, एक सेपरेट पेपर ही है, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो उसमें सारा मशीन लर्निंग का बेसिक्स ही पढ़ना है सर उसमें। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, यही सब है सर। डेटा कैंप भी एक अच्छा वेबसाइट है यदि तुम लोगों को पता हो तो। डेटा कैंप में तुम कोई भी कोडिंग वगैरह का कोर्सेज कर सकते हो, पावर बीआई का कोर्सेज कर सकते हो, डैशबोर्ड का कोर्सेज कर सकते हो, पाइथन आर डेटा साइंस कर सकते हो। पाइथन वगैरह तुम लोगों को पढ़ाया जाता है तो कितना लोग कोड कर लेते हो? ये चैट जीपीटी से कोडिंग कराते हो? एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन, पाइथन कोड लिखना रहता है? सर मोस्टली तो थ्योरी बेस्ड ही रहता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ कोडिंग भी आता है। तो जनरली कुछ लोग को इंटरेस्ट रहता है, जनरली मतलब 10-20% लोग को कोडिंग में इंटरेस्ट रहता है ब्रांच में, तो वो लोग इंटरेस्ट से करते हैं, बाकी वही थ्योरी पढ़ते हैं सर। अच्छा, वो सेलेक्टिव रहता है कि चूज चूज का ऑप्शन रहता है क्वेश्चंस में? हाँ यस सर। नहीं, करो उसको इंटरेस्ट से करो। बाकी जो पढ़ना है थर्ड ईयर तक ही पढ़ना होता है, फाइनल ईयर में कोई पढ़ता नहीं है। फाइनल ईयर का पेपर में लोग वही करता है जो फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ता है, उसी को आंसर को घुमा फिरा के लिख देता है।
पेपर्स भी उसी तरह का होता है, तुम लिख सकते हो ऐसा आंसर। और कोई क्वेरी किसी का? बाकी कभी भी लगे कि गुड इवनिंग। यदि बीटेक या कोई बीटेक प्रोजेक्ट या कोई चीज में कुछ हेल्प लगे कि क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपना इंटरेस्ट मेरे को बता देना और उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो। लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्ट करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और कोई क्वेरी किसी का? Yes, sir. Good evening, sir. Myself, sir, thank you very much for the insightful session. And secondly, sir, my question is that according to your opinion, what are the policies and government initiatives that could accelerate regional integration into the next level? अभी जैसे मान लो कि पहले क्या था ना, ये जो सोलर पावर प्लांट थे इसमें कुछ पॉलिसीज है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सोलर के लिए बताता हूँ। कितनों के घर में सोलर लगा हुआ है? किसी के घर में लगा हुआ है क्या? किसी के घर में नहीं लगा हुआ है। पहले क्या होता था कि लोग सोलर को सोचते थे कि बैटरी का अल्टरनेटिव है। ठीक है, सोचते थे मैं सोलर घर में लगा लूंगा तो पावर नहीं रहेगा, तो मेरा सोलर से पावर जनरेट हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि पावर कट्स के लिए लोग बैटरी लगाते थे, सोचते थे यही बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर होता है। ठीक है, अभी जो क्या है कि फिर पॉलिसीज फर्दर डेवलप किया कि कैसे इसको सपोर्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लाया जिसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग का क्या मतलब होता है कि जब तुम, लेट से तुम्हारा घर का लोड है 5 किलोवाट का। ठीक है, अब 5 किलोवाट का तुम्हारा लोड है और तुम घर में सोलर लगा लिए 5 किलोवाट का। ठीक है, अब क्या होगा कि तुम्हारा जो मीटर था ना, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर था, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाले लोग आएंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे। उसको रिप्लेस करके वो एक नया मीटर लगाएंगे जिसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर। बाई डायरेक्शनल मीटर क्या होता है कि सोलर तो दिन में जनरेट करेगा। अभी मान लो दिन में तुम्हारा घर बंद है, सोलर तो पावर जनरेट कर रहा है, तो एक्स्ट्रा पावर जो जनरेट होगा ना, जो मीटर के थ्रू तुम्हारा ग्रिड में चला जाता है। ठीक है, और रात के टाइम जब तुम घर में नहीं हो, रात में जब तुम घर में वापस आओगे, तब तुम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। अभी क्या होता है कि मीटर जो है जब तुम यूज नहीं किए तब जनरेट करके मीटर यदि राइट साइड मूव किया, और जब तुम यूज कर रहे हो तो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो वो पॉजिटिव में भी मूव करता है नेगेटिव में भी मूव करता है। तो इससे क्या होता है ना कि एग्जैक्टली तुम जितना यूनिट कंज्यूम किए तुमको उतना का ही इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट किया। गवर्नमेंट क्या बोला कि तुम बैटरी मत लगाओ, बैटरी लगा के पैसा बर्बाद मत करो, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो रहा है उसको तुम ग्रिड में दे दो। और ग्रिड में क्योंकि तुम बाई डायरेक्शनल मीटर लगा लिए, तो वो एनर्जी का रिकॉर्ड जो है वो उनके पास रह गया कि तुम कितना एनर्जी जनरेट करके दिए थे ग्रिड में। अभी क्या हुआ कि जो तुम एनर्जी जनरेट करके दिए ग्रिड में और जितना तुम कंज्यूम किए, दोनों का डिफरेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल तुमको पे करना पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं नेट मीटरिंग अरेंजमेंट। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट। ठीक है, अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट नेट मीटरिंग होता है, एक होता है ग्रॉस मीटरिंग। ग्रॉस मीटरिंग क्या होता है, उसमें दो मीटर होता है, एक एक से तुम्हारा लोड कनेक्टेड होता है, एक से तुम्हारा सोलर पावर प्लांट कनेक्टेड होता है। दोनों का सेपरेट रीडिंग ले लेता है वो लोग कि सोलर प्लांट कितना जनरेट किया, और दूसरा से रीडिंग ले लेता है कि तुम्हारा घर में कितना बिजली यूज हुआ, और उन दोनों के हिसाब से सेटलमेंट कर देता है तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, इवन झारखंड में क्या है कि तुम 1 मेगावाट तक, 1 मेगावाट सोलर तक नेट मीटरिंग अरेंजमेंट में जा सकते हो। तो ये सारा है पॉलिसी सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में पॉलिसी सपोर्ट है 1 मेगावाट तक जाने का।
लेकिन जो नेबरिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहां पे तुम 500 किलोवाट तक ही जा सकते हो नेट मीटरिंग में। तो अगेन ये सारा पॉलिसी सपोर्ट है जो डिफरेंट स्टेट्स का पॉलिसी डिसाइड करता है कि उनको कितना एग्रेसिव होकर रिन्यूएबल एनर्जी को अपने सिस्टम में अलाउ करना है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल जैसे हम बोले, उसी तरह का बहुत कुछ होता है। ग्रुप नेट मीटरिंग होता है। ग्रुप नेट मीटरिंग का मतलब हुआ, मान लो तुम्हारे पास 3 घर है, जिसमें से 2 घर में छत है, एक में छत नहीं है। तो तुम 2 छत में सोलर पावर प्लांट लगा के तीसरा घर का भी बिजली बिल उससे सेटल कर सकते हो, क्योंकि उसको ग्रुप नेट मीटरिंग बोल रहा है। तुम्हारा तीनों इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को यूज करके वो तुमको सेटल करके देगा। तो ये सारा होता है पॉलिसी सपोर्ट। दूसरा पॉलिसी सपोर्ट जो जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कि यदि ऑफशोर विंड पावर प्लांट लग रहा है, कॉस्ट हाई है, लेकिन गवर्नमेंट देख रहा है कि इसको स्केल किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि 8 रुपए का यदि इलेक्ट्रिसिटी उससे आ रहा है और मार्केट में 5 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी है, तो 3 रुपए का सपोर्ट दे देगा उसको। जो पावर प्लांट लगाएगा उसको बोलेगा कि 3 रुपए तुम मेरे से ले लो, बाकी 5 रुपए तो तुमको मिल ही रहा है। तो इसको बोलते हैं वाइबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये भी पॉलिसी सपोर्ट है। अभी जैसे मान लो कि हर कोई सोलर नहीं लगा पा रहा था, तो अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आया, जिसमें सब्सिडी मिल रहा है 3 किलोवाट लगाने पे 72,000 रुपए का। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिसी सपोर्ट है कि गवर्नमेंट चाहता है कि लोग सोलर लगाएं, इसीलिए 72,000 रुपीज दे के वो बोल रहा है कि तुम टोटल कॉस्ट यदि 2 लाख रुपए है तो 72,000 रुपीज तुम मेरे से ही ले लो, लेकिन सोलर लगा लो। ये पॉलिसी सपोर्ट है। इवन अभी ऐसा है कि तुम एक स्टेट में पावर प्लांट लगा के दूसरा स्टेट में भी यूज कर सकते हो। उसको बोलते हैं ओपन एक्सेस पॉलिसी। ओपन एक्सेस जो है वो इंटर स्टेट भी हो सकता है, इंट्रा स्टेट भी हो सकता है। ये भी पॉलिसी सपोर्ट है। इस तरह का बहुत सारा पॉलिसी सपोर्ट है। पॉलिसी सपोर्ट खुद में एक सप्ताह का लेक्चर है। जो पॉलिसी लेवल में काम करना चाहता है वो लोग बाद में पब्लिक पॉलिसी वगैरह पेपर भी पढ़ सकता है आफ्टर बीटेक। Thank you, sir. Okay, so if no one has any more Share queries, how- we are concluding. Okay, Kabir. So, sir, can you share how active and in project to enable integration and reduce operational cost? वॉइस ब्रेक हो रहा है, जाना है, एक बार फिर से बोलो। Okay, sorry, sir. So, sir, can you share how AI and predictive analytics are being used in the project to optimize reintegration and reduce operational cost? लास्ट वाला वर्ड बोलो, मैं सो गया। एआई और क्या चीज में यूज करना है Okay. तुम्हें? ये सर, जैसे सर हम एआई और एनालिटिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं सो दैट मतलब हम रिन्यूएबल इंटीग्रेशन को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ह्यूमन इफेक्ट एंड एज वेल एज फाइनेंशियल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सो एआई कैसे हेल्प कर सकता है सर इन चीजों में? ये बहुत ब्रॉड आंसर है, मतलब क्वेश्चन भी बहुत ब्रॉड है। मतलब देखो, तुम इवन सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट जब डेवलप कर रहे हो ना, उस टाइम उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ताकि तुम्हारा जो जनरेशन है जो तुम सोचे हो, जब क्या होता है ना कि किसी भी प्रोजेक्ट में क्या होता है, जब हम प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो हमारा कॉस्ट लग रहा है प्रोजेक्ट लगाने में। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि 1 मेगावाट सोलर लगाने में लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्चा है। अभी 3 करोड़ रुपए का खर्चा है यदि 1 मेगावाट लगाने में, और तुम यदि 100 मेगावाट लगा रहे हो, तो 100 मेगावाट में तुम 300 करोड़ रुपए खर्चा किए। अभी 300 करोड़ रुपए खर्चा में यदि तुम सही से प्लानिंग नहीं किए कि तुम्हारा सोलर पावर प्लांट कितना पावर जनरेट करेगा, तो थोड़ा सा भी डेविएशन, 1%, 2% का भी डेविएशन विल बी कॉस्टिंग योर कंपनी। ठीक है, तो पहला तो है कि जो पोटेंशियल असेसमेंट है सोलर या विंड पावर प्लांट्स का, वहां पे तुम एआई को यूज कर सकते हो ऑप्टिमाइज करने के लिए। फर्दर 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो वो एक एक दिन का तो प्रोजेक्ट है नहीं। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ इंस्टॉलेशन टाइम, 6 मंथ to 1 year।
उसमें तुम्हें प्लानिंग करना है, मैन पावर का, प्रोजेक्ट का, डिफरेंट स्टेप्स का, प्रोक्योरमेंट का, जितना भी टूल्स इन सब चीज के लिए यूज होता है वो भी एआई सपोर्ट के साथ आता है। इवन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं उनमें भी एआई सपोर्ट होता है। उसके बाद मान लो प्रोजेक्ट बन गया, उसके बाद जब तुम उसको इंटीग्रेट कर रहे हो ग्रिड में, तो वहां पे है ही, जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए कि स्मार्ट ग्रिड है या जो भी है, तो जो भी डिफरेंट टूल्स तुम यूज करो, मतलब हमारा काम क्या है, एआई और मशीन लर्निंग जो भी है, वो जो नॉर्मल हम डे टू डे वर्क कर रहे हैं उसको यदि हमें ऑटोमेटिकली करना है, ज्यादा जो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास हिस्टोरिकली है उसको यूटिलाइज करके बेटर डिसीजन लेना है, तो हम डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स लिखते हैं जो कि मेरा डिसीजन को ज्यादा वाइज कर सके। तो वो वाइज डिसीजंस लेने के लिए मुझे हेल्प करता है। तो एआई मशीन लर्निंग इज जस्ट ए सपोर्टिंग टूल, वो तुमको प्रोजेक्ट करके नहीं देगा, तुमको उसको यूज करना है ताकि तुम डिसीजंस अच्छे से ले सको। Yes, sir. Thank you very much, sir. Okay, sir. If no one has any more queries, we are concluding the session. And now I would like to invite our General Secretary of the Electrical Engineering Society, Pushpam Jha ma'am, to propose the vote of thanks. Ma'am, please. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am Pushpam Jha, General Secretary of Electrical Engineering Society. I would like to give a heartfelt gratitude to Varun sir for his insightful session. And sir, I can't explain. I learned so many new things today, like power market and net metering, viability gap funding. All these things are so new to me, and I think all the other listeners also learned the same thing for the first time. And I would like to thank all the ES members, our professors, for organizing this session. And at last, a sincere thanks to all the participants for joining us and making this event a successful with your active engagement. So once again, thanks a lot. थैंक यू। Welcome, sir. Now let us carry forward the vision shared today and continue working together towards a cleaner, greener, and more sustainable energy future. Thank you, everyone. Have a great evening ahead. Everyone can leave the meet now.